In this lecture, we will deal with the Shakespeare sonnet, When to the Sessions of Sweet Silent Thought. And this sonnet is sonnet number 30. You should remember this. This is sonnet number 30. And this sonnet is addressed to his friend. तो ये सोनेट नंबर 30 है और अब उसके फ्रेंड को उसने एड्रेस किया है. नाउ दिस सोनेट, द थीम ऑफ द सोनेट इज अगेन अबाउट डेथ, about loss of time, memory, and frustrations of life. So the poem is pessimistic in note, and there is a mood of grief in the poem. Mood of grief in the poem. राइटर दुखी है, पेसिमिस्टिक है, उदास है और अपनी जो इमोशंस हैं उनको रिकलेक्ट कर रहा है. एंड ही इज फीलिंग वेरी सैड अबाउट अवर पास्ट. अपने पास्ट के बारे में काफ़ी दुखी है. सो लेट्स मूव टू द sonnet. Let's study first a quatrain. When to the sessions of sweet silent thought. Now this sweet silent session, look at the word sound s, s. So this is the device of alliteration. Alliteration means in Hindi that is called anupras alankar, the repetition of sounds. Okay. So when to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. वो कहता है कि sometimes I get lost in my thoughts. I reflect back my life and I remember my past. वो कहता है कि sometimes मैं अपने past को याद करता हूँ, अपनी thoughts में खो जाता हूँ, and I start remembering my past. I shy. Shy means again बड़ा दुख होता है. The lack of many a thing I sought. और I feel sad. मुझे बड़ा दुख होता है उन चीज़ों के लिए जो मैं नहीं हासिल कर पाया, which I wanted. तो he feels sad and frustrated over the things which he could not achieve, over the targets of life which he could not achieve. उसके ऊपर काफ़ी दुखी है. And with old woes new veil my dear times waste. And new veil, मैं फिर दुखी हो जाता हूँ. When I remember my past grief, I adopt new grief. मतलब मुझे पुराने जो दुख याद करता हूँ तो मुझे फ्रेश में फिर मैं दुखी हो जाता हूँ. And I feel how I wasted my time. और मुझे बड़ा दुख होता है कि कैसे मैंने अपना टाइम, जो डियर टाइम था, उसको वेस्ट किया. एंड आई वेस्टेड ऑन द थिंग्स विच आई कुड नॉट गेट. उन चीज़ों को मैं हासिल नहीं कर पाया. सो ही इज अनहैप्पी ओवर हिज फ्रस्ट्रेशंस इन द लाइफ. देन द सेकेंड स्टेंजा ही सेड, देन कैन आई ड्रोन एन आई. ड्रोन एन आई, unused to flow. वो कहता है कि I usually don't cry, but then I start crying. मैं रोना शुरू कर देता हूँ. For precious friends hid in death's dateless night. Death, dateless, again alliteration. Does sound repetition. Death, dateless nights. किसके ऊपर रोना आता है? For precious friends hid in death's dateless night. उन फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रोना आता है जो कि डेटलेस नाइट्स, एंडलेस नाइट में सो गए हैं. मीन्स दोज फ्रेंड हु हैव डाइड. ये कहता है कि व्हेन आई रिमेंबर माई डेड फ्रेंड्स आई फील वेरी सैड. आई स्टार्ट क्राइंग. मुझे रोना आता है. एंड वीप afresh love's long since cancelled woe. Again, love's long, alliteration.
सिंस कैंसल्ड वो मीन्स दुख। और फिर मुझे वो पुराने दुख जो थे, जो भूल चुका था टाइम के साथ, आई स्टार्ट वीपिंग एफ्रेश, मैं दोबारा से फिर मैं रोना शुरू कर देता हूँ। मीन्स वेन एवर आई रिमेंबर, समटाइम्स आई फील लॉस्ट इन द पास्ट थॉट्स, पुराने टाइम में मैं चला जाता हूँ और पुराने दुख याद करता हूँ, पुराने फ्रेंड्स याद करता हूँ, और मुझे मेरे जो पुराने जो दुख हैं वो फिर फ्रेश हो जाते हैं, और आई स्टार्ट वीपिंग एंड मोन्स एक्सपेंस ऑफ मैनी वेनिस्ड साइट। वेनिस्ड का मतलब डिसअपियर होने, गायब हुई चीज़ें। वो कहता है कि वो चीज़ें, डिसअपियर्ड साइट, जो मेरी जब कभी को देख पाता था, उन मोमेंट्स को देख पाता था, उन पीपल को देख पाता था, उनके ऊपर मैं मौन करता हूँ। आई स्टार्ट वीपिंग, आई स्टार्ट क्राइंग, आई स्टार्ट फीलिंग ग्रीफ। सो द राइटर is completely in sad mode. He is recollecting his past friends, he is recollecting his past failures, and he starts crying. He is very sincere feelings. Then he says, then can I grieve at the grievances foregone? Again he repeats, I grieve over my past things, I cry over my past things, and heavily from woe to woe tell over. And then I lose myself in the chain of sadness. I get caught in the chain of sadness. वो कहता है कि कभी आपने देखा होगा कि कभी अब आप अपने पास्ट में जाते हो तो आपको एक नेगेटिव बात आ जाती है, फिर दूसरी नेगेटिव, फिर तीसरी नेगेटिव, तो एक चेन बन जाती है। वो कहता है मेरे साथ मेरे जो जितने भी ग्रीफ हैं, पुराने जो मेमोरीज हैं, जो बैड मेमोरीज हैं, दे स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड, और एक चेन बन जाती है। द सैड अकाउंट ऑफ फोर बिफोन्ड मोन, और ऐसी चीज़ें जिनसे मैं पहले ऑलरेडी दुख मना चुका हूँ, ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर मैं रो चुका हूँ, विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, आई अगेन स्टार्ट फीलिंग फ्रेश, सैड फ्रेशली। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं दोबारा से उनको दुख फील करना शुरू कर देता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग सैड, जैसे उनके बारे में पहली बार मैं दुख मना रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पास्ट थिंग्स में मैं तब भी दुखी हुआ था, बट आज भी मुझे वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं, एंड दे कम बैक इन माई लाइफ, वो वापस आते हैं मेरी लाइफ में, एंड आई फील वेरी सैड। सो दिस इज अ ट्रू साइकोलॉजिकल अकाउंट। आपने भी देखा होगा कि जब आप कभी काफ़ी उदास होते हो, मेडिटेशन के मूड में हो, व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर लाइफ, जब आप उसके बारे में सोचते हो, तब आपको रियलाइज होता है बहुत सारे दुख, वी गेट्स ड्रॉन इन द स्ट्रीम ऑफ सैडनेस, हम चेन में फंस जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी दुखी हुए हों। एक फ्रेश, इज अ वेरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ विच शेक्सपियर हैज शोन। Now in the last couplet, because in the couplet the sonnet takes the turn. अब पहले जो 12 लाइनें हैं, जो 3 quatrains हैं, in this Shakespeare is in the sad mood, काफ़ी दुखी है, काफ़ी he is in the stream of grief, दुख में बिल्कुल नहर डूबा हुआ है, he is drawn in the grief. But in the last 2 lines, but if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and all sorrows end. But वो कहता है, but dear friend, in such type of moments, when I think about you, all losses are restored. मेरे जितने भी दुख हैं, they become disappeared and sorrows end, and I again start feeling happy. It means whenever I think about you, you give me strength, energy, you give me spirit to live the life again, and you are source of happiness for me, तो मेरे लिए खुशी का source हो। So the last couplet tells about the importance of friendship, कि कैसे जो फ्रेंड होते हैं, जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है, उसमें importance of friendship, कि हाउ जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है आपको सपोर्ट देती है, इमोशनल सपोर्ट देती है, और आपको
एक लाइफ में एनर्जी देती है, लाइफ में जीने की एक एम्बिशन देती है. सो दिस इज द importance of a friendship. So this was sonnet number 30. So we will meet in the next lecture. See you soon.